Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I'm your host. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم گوہر. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا حسین. اور میں ہوں ڈاکٹر عافیہ. اور میں ہوں کیوٹ سی کائنات کاظم. اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ. دیکھا, جب تم تعریف نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے کیوٹ ہیں, بیوٹیفل ہیں, پریٹی ہیں. اس کو پتا ہے. اپنی تعریف خود ہی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, انسان کو پتا ہونا چاہیے ویئر وی اسٹینڈ. اچھا, تعریف سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے. جی ارشاد. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, جس نے جہاں بنایا. کیسی زمین بنائی. آگے رافیہ جی بولیں گے. آگے کیا ہے رافیہ جی؟ آئی ڈونٹ نو, کیسی زمین بنائی, کیسا آسمان بنایا, کچھ ایسا تھا. خیر چلے, میں چاہتی ہوں خدا کی جس نے آپ سب کو فائنلی انہوں نے سب کی تعریف کی. یونس تو بس ایسے ہی گر گئے تھے, بنانے کا موڈ نہیں. یونس, اللہ نے آپ کو بہت اچھا بنایا, بہت اچھا دل دیا ہے. بہت پیاری ہیں. پتہ ہے جب کسی کے لیے کچھ چھوڑ دیں, ہمیں جب کسی کے لیے کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں دل کا بہت اچھا ہے. کتنے پیسے دیے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو تعریف کر دو, وہاں بھائی بندی. اب سے ان کی بہن. دل کا حال اللہ جانتا ہے. اچھا, میں دل رشتوں کی جہاں تک بات آئی ہے نا, تو رشتوں پر ہی آج میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا, یہ ٹاپک کہہ لیں گے, مدعا ایسا ہے, لائٹر نوٹ پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن میرا جو پرسنلی, ایک انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا, میں کبھی بھی اس ٹاپک کو زیادہ چاہتی نہیں ہوں کہ میں اپنے شو میں خود ڈسکس کروں. لیکن اگر حال ہی میں یہ ہوا ہے تو کیونکہ ہمارا شو ایسا ہے گپ شپ کے, اس پہ ہم ہر مدعے پہ بات کرتے ہیں, کرنٹ افیئر پہ, مطلب لائک جو بھی حال ہی میں ہوتا ہے, جب بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس لائک نظریے سے دیکھتے ہیں. تو کسی کی ڈائیورس پر بات کرنا ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے, لیکن جسٹیفائی کرنے والے ہم ہوتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کا بھی پوائنٹ آف ویو کہ وہ غلط تھا, وہ صحیح تھا. ابھی میں بات کر رہی ہوں حال ہی میں ایک ایسے سیلیبریٹی کے جب ڈائیورس ہوتی ہے تو لوگوں کا وہ بحث کرنے کا جو نظریہ ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہو جاتا ہے, کہ وہ اتنا ہارش ہو جاتے ہیں کہ اس کے کیریکٹر پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اس کے کپڑوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اس کے خاندان پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بات کر بھی رہے ہیں تو ہم اس طرح سے بات کریں, کیونکہ ہم سیلیبریٹی سے امپریس ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. نارمل لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا وہ آرٹسٹ نے شادی کی, ایسے کی, ہم بھی ایسے کریں گے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کسی کی ڈائیورس ہوئی ہے تو آپ یہ سوچیں اچھا اس نے طلاق لے لیا, میں نے لی تو کیا بات. علیزہ گبول جو ہے, جن کی حال ہی میں ہی ڈائیورس ہوئی ہے, اور جن کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہوئی ہے, وہ خود بھی ایک شخصیت ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پیسے والی پارٹی تھی تو اس لیے شادی کی, تو اب مرضی آیا تو چھوڑ دیا. ایسی بات نہیں ہے. ان کے جو گھر کے ایشوز ہیں یا ان کی فیملیز کے ایشوز ہیں, قطعی ایک انسان کا جو نظریہ ہے اس کو آپ پراپر جج نہیں کر سکتے. میں بات کر رہی ہوں زریز ملک کی, جنہوں نے حال ہی میں علیزہ گبول سے شادی کی ٹرکی میں. آلموسٹ لائک 4-5 months ہوئے, اور زہیر ملک جو ہے وہ آلریڈی میرڈ تھے. ان کی علیزہ گبول کے ساتھ دوسری شادی ہوئی, اور دوسری شادی کے بعد یہ پاکستان سے آلموسٹ لائک چلے گئے تھے, اور علیزہ نے جو ہے فیلڈ سے بھی تھوڑا بریک لے لیا تھا, اور یہ ٹرکی میں تھے. لیکن ان کی شادی سے جو ملک ریاض, کیونکہ یہ ملک ریاض کے نواسے ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے آسیہ ملک, وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی. اور جیسے یہ ٹرکی میں ان لوگوں کی میرڈ لائف جو ہے یہ گزر بسر کر رہے تھے, تو اب سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ان کو علیزہ گبول کو ڈائیورس دے دی حال ہی میں. اور پہلے بہت زیادہ ریومرز تھے کہ ایسا ہوگا, نہیں چل سکتی شادی. بہت لوگوں نے علیزہ کے اوپر پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ میڈیا کی لڑکی ہے, شادی کہاں رکھ سکتی تھی. شوبز میں تو آج کل ڈائیورس کا رواج ہو گیا, نمرا خان کے ٹاپک پہ بھی لوگ ایشوز میں بات کرنے لگے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی اپنے شوق سے اپنا رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ اسٹینڈ لیتا ہے نا کہ میں نے اس انسان کے ساتھ شادی کرنی ہے, اور جبکہ اس کی آلریڈی شادی ہوئی ہے. تو ابھی مجھے ایک چیز بہت حیرت ہوئی مجھے کہ آسیہ ملک نے بات کی, اور آسیہ ملک نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے نے چھوڑ دیا. دیکھیں, آپ نامور فیملی سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے والد نے پاکستان میں سرو کرے, میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کری, لیکن مجھے لگتا ہے یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ کھل کر کسی کے اوپر تہمت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان میں ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا المیہ یہ ہے کہ کوئی عورت جو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکل رہی ہے,
everybody is allowed to talk about her character. हमारे पता नहीं सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि हम जैसे कोई इजाजत मिल गई हो ना, अब हम खुला कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बुरा कह सकते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कह सकते हैं. और हम किसी के डिवोर्स पे भी उस फीमेल के कैरेक्टर को हम जज कर रहे हैं. मतलब हाउ कैन यू डू दैट? आपको क्या पता कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ? अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हुई कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हम फेस भी ना कर सके, कोई हम लोगों के बीच की केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ नहीं पता, तो हाउ कैन वी जस्ट टॉक अबाउट समबडीज कैरेक्टर लाइक दैट? और राफिया जी, मुझे जो एक चीज बहुत बुरी लगी वो ये चीज थी कि आसिम मलिक जो खुद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अलीजे के ऊपर जो मतलब उनके कैरेक्टर के किसी भी चीज पर ना कि मेरे बेटे ने छोड़ दिया, अलीजे की तरफ से इस तरह से कोई न्यूज नहीं आई, उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन थोड़ा सा ये पेनफुल था कि आप खुद भी एक औरत है और आप इस तरह से ट्वीट कर रही हैं. बिल्कुल कायनात, आपकी बात से मुझे याद आया कि कुछ ही वक्त पहले जैसे कि उनका किस्सा सामने आया था, क्योंकि आपने मलिक रियाज की फैमिली का जिक्र किया, तो मुझे उनकी फैमिली का एक और इंसिडेंट मेरे जहन में घूम रहा है. वो जो उस्मान रियाज ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उनका, हमारी इंडस्ट्री की एक मॉडल है हुमा खान के साथ. उसके बाद देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ. फिर वो औरतें घर में दाखिल होती हैं, उनके खानदान की औरतें मलिक रियाज साहब की, और फिर वो गलत नामामूल हरकतें करती हैं उनके साथ, हुमा खान के साथ, जो कि मुझे, और फिर उनकी हिम्मत और बहादुरी तो आप देखें कि वो सारी उनकी वीडियोस बना के, उनकी पिक्चर्स बना के आपने उनको सोशल मीडिया पे वायरल करवा दिया. आपको किसने हक पहुंचाया आप किसी औरत के साथ इस तरीके से करके उसे लाइम लाइट में लाएं, और किस लिए? लाइक फॉर नो रीजन. अगर कोई गलत है, कोई सी, आप कहते हैं ना कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम योर होम. आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप उस औरत को आके कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो वो लड़का क्या, वो लड़की अपनी मर्जी से तो नहीं कि आप मुझे अपने घर में पनाह दे दें, मेरे पास छत नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ. आपके खानदान का ही है ना वो उस्मान साहब, जिन्होंने उनके साथ शादी होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा और फिर उनको उस घर में पनाह दी. एक बात, सिर्फ मैं एक बात इसमें याद करना चाहूंगी जो मैंने पर्सनली बहुत लोगों की जिंदगी में देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो मैंने ये देखा है कि हम लोग समझते हैं अच्छा उसकी पहली शादी हुई, उसने दूसरी शादी की, उसको क्या पता उसने दूसरी शादी के लिए उस लड़की को क्या क्या कहा है. ये हमारी क्या, तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है. जब आदमी किसी दूसरी फीमेल को अप्रोच करता है शादी के लिए, तो वो दुनिया जहान की कहानियां, और ये नहीं कि 100% हर कोई ऐसे करता है, बट 90% पीपल वो अपनी पहली बीवी की बुराई और उसके अफेयर और उसका कैरेक्टर और इस तरह की सारी बातें करते हैं. और इस तरह वो दूसरी फीमेल को कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी को ये बना दो, हमें नहीं. एग्जैक्टली ये ड्रामे मैंने अपनी जिंदगी में इतने देख लिए ना, इतने देख लिए हैं अपने दोस्तों के साथ होते हुए, लोगों के साथ होते हुए, कि मुझे अब वो हो गया कि आई थिंक इसको कम्प्लीटली एक रिफॉर्मेशन, एक पूरा मॉरल रिफॉर्मेशन की जरूरत है. क्योंकि फीमेल जो है मुझे लगता है बहुत इमोशनल होती है और वो इन सब बातों में बड़े आराम से आ जाती है. तो वो जब किसी को देखती है रोता धोता इतना परेशान, तो कहती कुछ नहीं होता, आई विल डू समथिंग फॉर दिस पर्सन. वो डू समथिंग में वो जो कर लेती है, फिर वो उसी के गले पड़ जाता है. I wanted to ask you कि जैसे आपने हुमा का बोला, where is she now? जब केस इनका चला गया था, let me finish. Okay. केस चला गया था, उन्होंने विड्रॉ किया केस, जो सुनने में आया कि उन्होंने पैसे लिए बहुत सारे और यहाँ से चली गई. एक मिनट, पैसे उन्होंने अपने मुंह से नहीं मांगे थे. उनके घर की जो औरतें थी उन्होंने कहा कि हम आपको इतनी रकम दे रहे हैं, आप हमारे बेटे की जान छोड़ दें. और आप अपने घर के बीच को क्यों नहीं सुधार रहे? आफ्टर, मैं कह रहा हूँ जब उनके साथ ये केस हुआ एंड देन उन्होंने केस फाइल किया, फिर उन्होंने अपना केस विड्रॉ कर लिया, पैसे लेके वो चली गई, जो भी है, व्हाट आई डोंट नो द अमाउंट, आई डोंट नो वेयर शी वेंट, ये चीज. यूनुस, मसला ये है, सॉरी मैं इसी में ऐड करूंगी, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, कि जब लड़की पे कोई केस होता है ना, तो उसको थ्रेट्स भी बहुत आ रही होती हैं कि आप ये केस वापस ले लें, ये इस तरह की चीज. इस केस में उस टाइम पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा था, और अगर अल्लाह ना करे कुछ होता तो सबको पता था कि हु इज रिस्पांसिबल. मगर वो बेचारी फिनिश ना रुशिया, तब आपका जो अपना वकील है वो तब कह रहा है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया केस पैसे लेके, तो फिर बात ही क्या रह जाती है? औरत की इज्जत का मसला भी होता है. देखिए, उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, जो मेरी बदनामी हुई मुझे उसका इंसाफ दीजिए. Yes, she said वो that. फिर उसके बाद गायब क्यों हुई? वो बात क्यों नहीं आगे तक पहुंची? वो फर्दर केस क्यों नहीं आगे बढ़ा? देखिए, विड्रॉ हुआ, उनकी तरफ से विड्रॉ हुआ, पहली बात ये. नंबर 2, ये मुझे बताएं, लड़कियां क्या इतनी डम है या इतनी बेवकूफ हैं कि कोई भी आके बोले कि आप मुझसे शादी कर लें, मैं सुधर जाऊंगा, मेरी पहली बीवी ऐसी, वो मान जाएगी? उसको तो देखिए, हमारा रिलीजन अलाउ करता है 4 शादियां, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, लड़की को पता है कि अगर ये अपनी पहली बीवी, इसकी शादीशुदा है और उसकी ऑलरेडी बीवी है, क्या मसले मसाइल हैं. कोई भी लड़का अगर दूसरी शादी करता है किसी लड़की के साथ, वो फोर्स मैरिज नहीं करता,
وہ परमिशन से निकाह आपको कबूल है? जी, लड़की भी कहती है मुझे कबूल है। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, निमरा खान के या दूसरी चीजें। डिवोर्सेस क्यों हो रही है? डिवोर्सेस पाकिस्तान में बहुत हो रही है क्योंकि हम मीडिया में हैं, मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं, पब्लिक फिगर हैं, दैट इज द ओनली रीजन। मैं बताती हूँ, देखें, औरत की कंसेंट से होती है शादी, या एक्स्ट्रा मैरिटल में भी वो आती है तो वो अपनी कंसेंट से ही आती है, कोई मर्जी के बगैर उसको गन पॉइंट पे तो नहीं लाके रख सकते हैं। लेकिन इन सम केसेस मुझे लगता है कि औरत यहाँ तो फूड शेल्टर, या उसको ना लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मे बी उसके फाइनेंशियल क्राइसिस से वो मजबूर होकर किसी ना किसी के साथ ताल्लुक में आ जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जो सामने वाला मर्द है वो आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगा, तो आप प्लीज ऐसे इंसान को जिंदगी में आने का मौका नहीं दें। और अनम, मैं भी एक बात, एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगी। एक छोटी सी बात ऐड कर लूं अनम की बात से। वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब लड़की को ऐसा लगता है कि वो मुझे तहफ्फुज़ देगा शादी के बाद, प्रॉपर्ली मेरी सारी चीजों को देखेगा, तो मुझे लगता है कि वो शादी कर भी लेती है। तो इसमें जैसे यूनुस ने अभी मैंने बहुत कुछ कहा नहीं, जैसे आप शादियों पे बात कर रहे थे कि 4 शादियां जायज हैं और औरत को सब चीजें पहले से पता होती हैं और सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस, औरत को एक तहफ्फुज़ की जरूरत होती है। अगर कोई मर्द इतना तहफ्फुज़ दे रहा होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होकर वो बात कर रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि औरत लालच में कर लेती है। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। औरत कमजोर होती है मतलब बात तो कंप्लीट करने दें। जैसे कि लालच, वो वाला लालच नहीं कि जैसे कि उसको सब कुछ मिल जाएगा, वो लालच ये होता है तहफ्फुज़ का लालच। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी उर्शिया। हम एक जगह कहते हैं कि अपनी जो औरतें, लाइक अपने मुल्क की, अपनी कौम की जो औरतें हैं, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, वो अपने पाँव पे खड़ी हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उनकी लाइफ में होना चाहिए। मैं औरत को कमजोर नहीं समझती कतई, और मैं ये नहीं समझती कि वो एक शेल्टर के लिए या फिर अपने तहफ्फुज़ के लिए किसी मर्द से शादी करती। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऑलरेडी हम अपनी बहुत सारी चीजों को खुद डील करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं। बट माशरे में इज्जत, नाम और मकाम पाने के लिए एक मिनट, औरत जितनी भी मजबूत होगी लेकिन वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती अगर उसके साथ मर्द की सूरत में अगर भाई है, बाप है, शौहर है, तो उस औरत को ही सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। एक औरत कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी आपको आपकी जिंदगी में मर्द का होना बहुत जरूरी है। ये इस्लाम में, आपके इस्लाम में जाके लड़ेंगे जो अल्लाह पाक ने बोल दिया। नहीं तो थोड़ा सा एक चीज, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी इसलिए मैं अपनी बात, क्योंकि जब आप आधे में बात छोड़ देते हैं तो उसका मकसद जो है ना वो बदल जाता है और उसको कोई भी वो, मैं ये बात कर रही हूँ कि बिल्कुल शादी तो हमारे इस्लाम में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें करना चाहिए, लेकिन हम इस रीजन पे नहीं कर सकते कि तहफ्फुज़। और दूसरी बात है कि मेरा इस इशू के ऊपर बात करना वो नहीं था कि जब मैं इशू लेकर आई, मेरा ये था कि ठीक है किसी की डाइवोर्स हो गई, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद वो लड़की बात नहीं कर रही। मतलब मैं इस शख्सियत के बारे में, मलिक रियाज की फैमिली के ऊपर बात की, कभी भी इनकी जो विक्टिम होती है, हुमा खान भी हो गई या फिर दूसरी अलीज़ा, इन लोगों ने कभी बात नहीं की, हमेशा दूसरी तरफ से बात उठाई गई। इन्होंने बात उठाई कि डाइवोर्स हो गई है या फिर मेरे हस्बैंड के साथ, तो ये चीजें मुझे लगता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कायनात में जरूर वो करूंगी। देखिए, हमारी जैसी भी सोसाइटी है, जैसा भी माशरा है, उसमें हमने ये देखा है कि अल्टीमेटली विक्टिम ब्लेम किया जाता है, अल्टीमेटली। और विक्टिम ब्लेम में यूजुअली फीमेल को ही विक्टिम ब्लेम किया जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या उसकी बात सुन, उससे मैं क्या बात करके करूंगी, क्या बात सुना के करूंगी, और मेरी बेइज्जती होगी और मेरे उसके ऊपर वो आएगा, मैं चुप करके साइड ऐसे हो जाती। ऐसी बहुत सारी फीमेल की अप्रोच है। मैं ये नहीं कहती वो अप्रोच गलत है या अप्रोच सही है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए कि यार कीचड़ मुझ पे उछलेगा, और वो उसको चुप कराने के लिए, खत्म कराने के लिए वो साइड। कायनात ने कहा कि जो ट्वीट आया है वो उनकी वालदा की तरफ से है। तो जो विक्टिम ब्लेम हो रही है वो औरत है। यूनुस, एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ, हम ब्रेक से आके इस पे बात कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक दे दे, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे अलीज़ा गबोल की, जिनका डिवोर्स हुआ है। तो अभी जैसे आपने कायनात, आपने कहा कि जो उनके ब्लेम किया जा रहा है, शी इज द विक्टिम, बट हैविंग सेड दैट, जो ट्वीट आया है वो उनकी वालदा की तरफ से आया उस लड़के की, और वो भी एक औरत है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि औरत की दुश्मन कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है। बट लड़की, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें लड़की के डिवोर्स हुए हैं और लड़की ने आके पहले कीचड़ उछाला दूसरी फैमिली पे। ऐसा होता है। ये कोई इस केस को अगर हम ले लें, अलीज़ा गबोल वाज इंडिपेंडेंट, वो फेमस थी, उसके पास पैसा था, सब चीजें थी, देन व्हाई डिड शी मैरी समवन हु वाज ओल्डर देन हर, हु वाज मोर रिच देन हर? क्यों किया?
फिर अगर हम कहते हैं लालच नहीं था, उसको प्यार हो गया, प्यार अंधा होता है. आई एम जस्ट सेइंग कि देखें, Yeah, exactly. लेट मी फिनिश ना. आई एम सेइंग कि यहाँ पे लोग शादी, तब उनकी शादी हुई तो लोगों ने बोला कि वो पैसों के लिए शादी की उसने, क्योंकि द गाय वाज नॉट दैट गुड लुकिंग, इफ आई एम रॉन्ग. तो रीजन लोगों ने ये बोला ना, उसके पास तो पैसा था ऑलरेडी, शी इज ऑलरेडी फेमस, काम कर भी रही है वो मीडिया में, पैसे भी अच्छे कमा रही है. तो बट अगर आपको शादी करनी है, मेरा ओपिनियन है, पैसा ठीक है, पैसा आपके नसीब में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा. आप शादी उस इंसान से करें जिसका दिल साफ हो, जिसकी सीरत आपके अच्छी हो, हक में बेहतर हो. जो वो तो देखिए, शादी तो अल्लाह की गेम है ना. हमारे जो होता है ना, जोड़े आसमान में बनते हैं, पकड़े हिलपाक जाते हैं वो एक अलग बात है. लेकिन शादी कोई भी, वो लड़का हो लड़की हो, अच्छे इंसान से करें जो थोड़ा सा मेच्योर हो. जरूरी नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल हो, कोई PhD होल्डर हो, डजंट मैटर. थोड़ा सा मेच्योरिटी हो, वो लाइफ में देख सकता है क्या सही है क्या गलत है. ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात वो शादी करते हैं मीडिया में, दूसरी मैरिजेस करते हैं बिकॉज उनके पास पैसा है, बिकॉज उनको पता है कहीं ना कहीं ये एक इमेज बनी हुई है मीडिया की लड़कियों की कि वो लालची हैं, वो ज्यादा पैसे वाले से शादी करेंगी. तो डजंट मैटर कि उसकी पहले शादी हुई है कि 3 शादियां पहले हुई हैं, डजंट मैटर. अगर लड़की को शादी करनी है, वो एक इमेज बनी है. आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज द सेम, बट एक इमेज बनी हुई है, मेंटालिटी. बहुत सारे एक्ट्रेसेस, आप हॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड ले लें, कहीं भी ले लें, वो सारी एक्ट्रेसेस बिजनेसमैन से शादी क्यों करती हैं? उनको हीरो कम खूबसूरत होते हैं, हीरो कम पैसे वाले होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आई विल टेल यू व्हाट, देखिए फीमेल के लिए शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए स्टेबिलिटी. ठीक है, हर फीमेल स्टेबिलिटी, तहफ़्फ़ुज़, अपना फ्यूचर उसके साथ, लेकिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे इंसान के साथ होना जिसका खुद का मेंटल स्टेटस सेम हो, खुद एक इंसान हो. जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा हो, आप उसके साथ स्टेबल रह के खुश रह सकते हैं. आप ये सोचते हैं तो फिर आपकी शादी होती है. ये नहीं कि गरीब इंसान की शादी नहीं होती, क्या बिल्कुल होती है, ये तो कोई बात ही नहीं है. बट बात ये है कि आप शादी जब भी करें तो आप सबसे पहले सिर्फ ये देख लें कि वो मॉरल ग्राउंड्स पे वो इंसान, वो लड़का या वो लड़की, दोनों मॉरल ग्राउंड्स पे कहाँ खड़े हैं, क्या हो इनका, क्या रह चुका है, क्या है वो अभी, और क्या आप उनसे एक्सपेक्ट. किसी का भी आप किसी के कहते हैं ना कि उसका पास्ट मत देखो, मैं कहती पास्ट देखो. पास्ट देखने से आपको पता चलता है कि इसके फ्यूचर स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि इंसान तो वही रहेगा ना. ठीक है, वो शायद थोड़ा पॉलिश हो जाए, थोड़ा सा उसकी मैच्योरिटी उसमें आ जाए, लेकिन जो उसका बेसिक जो नेचर है वो उसकी वही रहेगी. आप जरूर उसका पास्ट देखो. राकेश जी, बस मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद आप बोल देगा. कितनी इंटरेस्टिंग इन लोगों की स्टोरी लग रही है. यही कह रहा हूँ कि आप आज के जमाने में कोई डम नहीं, कोई बेवकूफ नहीं. दिस इज व्हाट यू थिंक. दैट इज 1 in 1,000 केसेस होते हैं कोई डम होता है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि अगला इंसान कैसा है, और आप तब शादी का फैसला लेते हैं किसी के साथ, दैट मीन्स कि आपने जिंदगी गुजारनी है, तो आपको पता होता है वो लड़का हो या लड़की हो. आज के जमाने की बात बता रहा हूँ मैं. Not necessarily. Again, Yunus, not necessarily. Yunus, मैंने इतने बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं लोगों के, इतने बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं जो कि आपको शादी के 10 साल बाद या 20 साल बाद जाके पता चल रहे होते हैं. ऐसे लंबे लंबे ड्रामे बेवकूफ हैं. मैंने इस इशू कह दो बेवकूफ है, लेकिन इस द वे द अदर पर्सन माइट बी एक्सट्रीमली क्लेवर. उसको कवर करना आता हो, उसको छुपाना आता हो, उसको सब वो करना. क्यों नहीं यार, लोग दुनिया में धोखे क्यों खाते हैं? तो मतलब इसका मतलब ये है कि सब लोग बेवकूफ हो गए? नहीं, धोखे इंसान क्यों खाता है? क्योंकि या तो आपका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है, नॉट इवन अ ब्लाइंड ट्रस्ट, आपका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो चुका होता है, और उस अब दूसरे इंसान को लगता है कि अब ये ट्रस्ट में आ गया है, तो अब इसके साथ टाइम से भी तो बंदा चेंज हो जाता है ना, उम्र से भी चेंज हो जाता है. जब स्टेप बाय स्टेप जब आपकी एज बढ़ रही होती है तो वो चेंज हो जाता है. आपकी जो बेसिक जो आपकी फितरत है ना, ये आप याद रखिएगा. जी. आनंद, तुम्हारी क्या राय है? इंसान की बेसिक फितरत वही रहती है. सच में देखिए, हम जैसे कि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि औरत 2 पहलू निकाले कि यहाँ औरत कमजोर होती है या हमने कहा कि औरत लालची होती है. माजरत के साथ मैं नहीं एग्री करती इन दोनों फिक्रों से, क्योंकि मुझे लगता है औरत जरूरतमंद होती है. आपको पता है कदीम जमानों में जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बात करूं, जब उन्हें लगता था कि कोई औरत जो है फाइनेंशियली अनस्टेबल है, तो वो उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल्स नहीं रखते थे, वो उनको अपने निकाह में ले लेते थे और उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाते थे. तो औरत के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों टर्म्स यूज करना
क्या कहते हैं ना इंसाफी होगी मेरी नजर में। ना तो औरत लालची होती है और औरत कमजोर होती है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए कमजोर हो जाती है। लेकिन बाकी उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जैसे उर्शा आपने बोला और जैसे कानात आपने बोला, आपकी बात से भी एग्री हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंट लोगों के आ जाते हैं ओपिनियंस, हर किसी की जाहिर है अपनी राय, हम किसी पे अपनी मर्जी या अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकते। सबका दुनिया को में चलने का या दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होता है। मे भी मेरी बात से यूनिस एग्री नहीं करते, मैं इनकी पॉइंट से नहीं एग्री करती, लेकिन मैं अनम आपकी इसी बात से कहूंगी कि मैंने ये उठाने से पहले, ये इशू उठाने, ये मुद्दे को डिस्कस करने से पहले यही कहा था कि हम किसी के डाइवोर्स को जज नहीं कर सकते। मतलब कोई नहीं रह रहा किसी के साथ, हम ये नहीं कि वो गलत था, वो लालची थी, उसको पता था कि शादी हुई। देखिए हमें नहीं पता, और हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। एक सेकंड कर ली बात कंप्लीट। कभी कभी दिखने में सिचुएशन कुछ और होती है और पकड़ लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैंने कायनात की बात से मैं भी छोटी सी एक बात ऐड करूंगी कि वाकई में मर्दों को लाइसेंस मिल जाता है जब उनके ऊपर कीचड़ उछालना होता है। आप जब भी देखेंगे कि जब डाइवोर्स होता है तो औरत खामोश हो जाती है, अपनी इज्जत को लेकर, अपनी फैमिली की वजह से खामोश हो जाती है, मगर मर्द नहीं खामोश होता। उसके पास जब भी जाएंगे तो वो बुराइयां ही करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि कोई हम नहीं होते जज करने वाले, हम नहीं करेंगे। हम लोग एक मैच्योर्ड, इंटेलिजेंट, पैट्रियोटिक लोग हैं, हम लोग नहीं दूसरों की लाइफ में घुसते। बट जब आप पब्लिक फिगर हैं, जैसे इमरान खान साहब की डिवोर्स हुई, उनकी 3rd मैरिज हुई जी, लोग जज करते हैं। पब्लिक फिगर हैं तो आपने आवाम को पब्लिक प्रॉपर्टी एक फ्री टिकट दे दिया है। यू कैन जज मी। आपका इंस्टा पब्लिक है, आपका फेसबुक पब्लिक है, आप फेमस हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी फेमस, अगर कोई पॉलिटिशियन का डिवोर्स होता है या शादी होती है, अभी जैसे मरियम नवाज की बेटे की शादी जो हुई, लोगों ने जज किया ना वहां पे उनकी मैरिज को, प्राइस को, सब कुछ जज किया। तो व्हेन यू आर पब्लिक फिगर, दैट मीन्स कि यू आर गिविंग द राइट टू द आवाम, तो जज करें, जज करें, बिल्कुल करें। जज करना भी चाहिए, क्योंकि हम खुद कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर जब हर तरह के टॉपिक, लेकिन जज करने के लिए किसके माँ बाप या फिर XYZ इतनी हद तक आप लिमिट क्रॉस कर दें कि एक लड़की को पहले ही वो डिप्रेशन में हो। मतलब आप मर्द को भी तो जज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप दलाइल और हकाइक हो तो उस पे बात करें, वरना बिला वजह कोई बात मत करें। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकली जज करना। ये होगा, ये होगा, ये नेगेटिविटी में जज करना। आपके पास दोनों को करें फिर जज, नहीं दोनों को आप क्यों करें? मैं राफिज जी कहने का मतलब है दोनों को जज करें। जहाँ पे आप औरत के कैरेक्टर पे बात करें तो आप मर्द के कैरेक्टर पे भी बात कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा पब्लिक फिगर, आपने कहा पब्लिक फिगर जज होते हैं, तो मैंने कहा अगर आपने जज करना भी है ना, तो क्यों हमेशा विक्टिम औरत को, मतलब इसी की गलती है। मेरा कहने का हर पब्लिक फिगर ने अपनी जैसे कहते हैं पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं किया हुआ, इसमें हमारा राइट्स नहीं है बोलने का। बहुत सारे लोग पब्लिक फिगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप उनका कोई भी सोशल मीडिया फॉरम उठा के देखें, आपको वहाँ नहीं नजर आएगा कि वो अपनी बीवी या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को, जब वो नहीं कर रहे तो आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं भाई? हु आर यू? यही तो बात है ना राफिया जी, हमें लाइसेंस मिल जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते इसको, इसको बदतमीजी कहते हैं, इसको लो मॉरल वैल्यूज कहते हैं, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जाता। जितना जहन है उसके मुताबिक वो कमेंट करता है, उसके मुताबिक वो उसको जज करता है। हम लोग एक पढ़े लिखे एक तबके से ताल्लुक है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है अपने बारे में? तो हम लोग नहीं जज करते किसी को भी। बहुत सारी, मुझे तो ये न्यूज़ का पता भी नहीं था। द रीजन इज कि जो अवाम बैठी हुई, हम उधर की बात कर रहे हैं ना, कि अवाम ये अज्यूम कर रही है कि ये हुआ होगा लड़की का। एक बनी हुई है सोसाइटी में इमेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में इमेज अभी से नहीं, बहुत टाइम से बनी हुई है कि औरत कॉम्प्रोमाइज करेगी, मर्द कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये गलत है, मेरा ओपिनियन है, ये बहुत ही गलत है कि सिर्फ औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करे शादी के लिए, शादी चलाने के लिए, क्यों बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है। जी एक काम करते हैं, नहीं मैं बोल रही हूँ यूनिस, मुझे लगता है कि इस तरह के मसले मसाइल आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें औरत के किरदार पे उंगली बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। इसी बात के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। काफी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है, मुझे लगता है कि अपना मूड भी चेंज कर लेना चाहिए और टॉपिक भी चेंज कर लेना चाहिए। मैं काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, आई मीन इंफॉर्मेटिव है, और वो स्टोरी ये है, वेस्ट इंडीज के साहिल समंदर के बॉटम पर एक अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क है, जो कि बेसिकली जब आप अंडर वाटर जाते हैं तो वो पूरा जो है वो स्टेचूज हैं बड़े बड़े से, और वो 100 से ज्यादा डिफरेंट स्टेचूज हैं,
اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو فشز ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, سیف سمجھتی ہیں, کیونکہ جب وہ آپ گہرے سمندر میں جاتے ہیں تو آگے ان کو کوئی پتھر یا پہاڑ ان کو نیچے نہیں ملتا. وہاں کے جو آرٹسٹ ہیں جیسن, بیسکلی جب وہ نیچے آرٹسٹ اپنے مائنڈ کو چلا رہے تھے کہ ہمیں کیا چیز ہمیں سیو کرنی چاہیے, کیونکہ جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. دیٹس وائی انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے خوبصورت سا ایک پارک بنایا جائے, اور وہ کافی خوبصورت ہے. جب آپ لوگ دیکھیں گے پکچرز تو وہ واقعی میں آپ کو بہت اچھا لگے گا. جب ہم لوگ انڈر واٹر جاتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, اور وہ کافی امیزنگ لگتا ہے. بیسکلی یہ 800 اسکوائر میٹر پر یہ بنا ہوا ہے, تو وہ کافی ہیوج ہے. اس میں ایک تھیوری بھی ہے کہ جو آرٹسٹ ہے, جو فائن آرٹسٹ ہے, اس کی انٹینشن پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیوں بنایا گیا. تو لوگوں نے ایک تھیوری بنائی کہ نہیں یار لیٹ می فنش نا, واٹس رانگ ود اٹ. تو کہ لانگ ٹائم بیک ویسٹ افریقہ سے سلیوز جاتے تھے ٹو امیریکا, اینڈ اس دوران جو کوئی تنگ کر گیا یا کوئی کرمنل ہو گیا یا کوئی پرابلم کر رہا تھا تو اس کو وہاں پھینک دیتے تھے اس سمندر میں, اس پارٹ میں. تو ایک ایسا ہے کہ فائن آرٹسٹ کی لوگ بولتے ہیں کہ اس کی انٹینشن یہ تھی کہ ٹو ریمائنڈ پیپل کہ ویسٹ افریقہ سے سلیوز کو لے کر امریکہ جا رہے تھے, اور وہ جو جگہ ہے جو پرٹیکولر مڈل آف دا سی ہے وہاں پہ کرتے تھے کہ وہ بندہ بچ بھی نہ پائے. وہ لوگ کہتے ہیں بٹ جو فائن آرٹسٹ obviously said کہ اس نے وہ سارے سکلپچر مطلب کیسے سرکل, اگر آپ دیکھیں نا جو سکلپچرز ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, وہ سرکل میں کھڑے ہیں. میں بھی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ یار ہمیں وہ سکلپچرز سارے ہیومن شیپ کے ایگزیکٹلی, اور وہ کچھ ایسے بھی ڈفرینٹس بھی بنے ہوئے ہیں. بیسکلی وہ کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, ڈفرینٹ اسٹیچوز بنے. پانی میں کیسے بنائے ہوں گے؟ پر اس کا موٹو کیا ہے, مطلب موٹو فش کو نہیں فش کو بھی سیو کرنے کے لیے آرٹسٹ بنا لیتا ہے اپنے ویژن سے. نو بڈی کین. تو ویژن ہی میں وہ جاننا چاہ رہی تھی, لیکن اس نے پروبیبلی کہا ہوگا کہ ڈفرنٹ پیپل فرام آل واک آف لائف یہاں پہ ان کو مارا گیا. تو وہ مونالیزا پینٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی, obviously اس کے پیچھے کیا ہے مطلب بتائیں. آج تک سمجھ نہیں ایسی بہت ساری پینٹنگز ہیں ان کا کوئی میسج ہی نہیں ہے. اینڈ یو نو واٹ, جو میجورٹی لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے سیڈ picture. It looks, Lekin it is a sad picture. She's smiling. Yeah, but There's some This is a sad smile. in her eyes. No, not saddest. Sad smile. Sadness کہہ رہا ہوں میں, in her eyes. Sadness. وہ تم نے دیکھ لی میں نے اس کی آنکھوں سے, عورت کی آنکھوں میں تب بہت کچھ آتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے. اچھا نشیاں میں آپ کو بہت ہوگی, ہم نے بار بار کی باتیں کر لی, تھوڑے اپنے پاکستان پہ بھی آتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے چھوٹے سے ایریا کے لیے, چھوٹے سے گاؤں کے لیے جس کو رسول پور کہا جاتا ہے, اور رسول پور کا یہ گاؤں آپ کو پنجاب میں ملے گا. اچھی بات کیا ہے اس گاؤں کی؟ ویسے تو گاؤں کی بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھا لگتا, بٹ یہاں دیسی گھی, مکے کی روٹی, سرسوں کا ساگ, گوری نکلی. جی جی اچھی بات بتائیں. ابھی ریسنٹلی لٹریسی ڈے بنایا گیا تھا 8 سپٹمبر کو, اور یہاں پہ لٹریسی ڈے سیلیبریٹ ہوا. اب آپ کہیں گے گاؤں میں لٹریسی ڈے, آئی ٹیل یو لٹریسی ڈے کیوں سیلیبریٹ کیا گیا, کیونکہ اس پرٹیکولر گاؤں میں 100% لٹریسی ریٹ ہے, 0 کرائم ریٹ ہے, 100% لٹریسی ریٹ ہے. یہاں پہ 1 ایلیمنٹری 2 ہائی اسکولز ہیں, اور جس طرح ایک ہماری ایک ڈیفینیشن ہے نا کہ اف یو نو ہاؤ ٹو رائٹ یور نیم یو آر ایجوکیٹڈ, تو جس طرح ایک چیز ایکسپلین کی جاتی ہے کہ اس انسان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو ایٹ لیسٹ اپنا نام لکھ لے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دس از ناٹ انف. اگر آپ ہائی اسکول گریجویٹ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ نہیں بنا سکتے. اس گاؤں میں پرٹیکولرلی 2,500 سے 3,000 لوگ رہتے ہیں, اور سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں. جب یہ لوگ بلوچستان سے شفٹ ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس obviously وہ بہت غریب تھے, ان کے پاس کوئی پروفیشن بھی نہیں تھا پریکٹس کرنے کو کچھ, تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کو نا ایجوکیشن پہ بیس کر دیا. اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں کا لٹریسی ریٹ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, وہاں پہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کو اگین میں کہوں گی جنت ٹائپ جگہ ہی ہوگی, جہاں پہ 0% کرائم ریٹ اینڈ 100% لٹریسی ریٹ ہے. I want to add one thing کہ in the last 100 years اس گاؤں میں کوئی کرائم نہیں ہوا. نمبر 2, وہاں پہ نہ کوئی سگریٹ پی سکتا ہے, نہ خرید سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے. ویری نائس. یہ کون سی جگہ؟ یہ رسول پور. اچھا اچھا, ویری نائس. تو پھر آپ کو وہی نہ بھیج دیں, مطلب یونس کی تو انٹری بین, وہی کہہ رہی وہی بھیج دیں. Smoking is not good for health, تو اسموکنگ نہ کیجیے. یہ کس دل سے کہا ہے؟ نو نکوٹین, اور لٹریسی ریٹ ہے, اور کوئی کرائم نہیں ہے. ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہی نیشن کے ہیرو ہیں. وہاں پہ جو دکان پہ بیٹھا ہوگا نا وہ بھی ماسٹرز ہیں, جو بس چلا رہا ہوگا اس نے PhD کی ہوئی. ویری نائس. اینڈ اور کسان
वो भी काम हो रहा होता है बिजनेस, वो भी मास्टर्स हैं, सब लोग मास्टर्स पढ़े से लिखे नीचे आपको कोई नहीं मिलेगा। एंड सबसे मजे की बात कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनका दावा है, अब आई डोंट नो कितना श्योर है, आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है, कि यूरोपियन स्कूल सिस्टम है ना उससे ज्यादा अच्छी एजुकेशन, और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम यहाँ से ड्राइव हुआ है। लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहा, मुझे लगता है कि बोलेंगे कि विलेजेस जो है बहुत पीछे रह गए और वहाँ पे बिजली नहीं है, वो माशाल्लाह मुझे लगता है विलेजेस हम बहुत ज्यादा, एक जमाने में टीवी पे ऐड आता था मेरे गांव में बिजली आई है, मैंने कहा अब जो है ना एरा चेंज हो, वो तो अलग नॉस्टैल्जिया राफे जी 10 साल पुराना, तब मैं बस्ता लेके स्कूल जाती थी, मुझे अपना ये उम्रें कब बढ़ेंगी? एक तो आनंद की उड़ती भाई मैं तो पैदा मैंने उम्र में कोई बात ही नहीं सुना था यार, पाकिस्तान वाकई में बचपन की बात याद करवाई तो वाकई में बचपन याद आ गया कि जब हम छोटे छोटे होते हैं ना तो नई नई बुक्स आ रही होती हैं, यूनिफॉर्म आ रहा होता है, तो इंसान को बहुत खुशबू याद है, और इतना एक्साइटेड होता है, सुबह सुबह उठ के फौरन से अपनी वाटर बॉटल जो है वो भरनी है, लंच बॉक्स रेडी करना है, खुद ही मम्मा के साथ लगे होते हैं हम लोग, और रात को नए जुराब और पॉलिश करके रखते हैं जूते, और फिर 10 दिन के बाद ही अच्छा सुबह स्कूल जाना है, बैग में से कॉपियां डालनी है, अपना लंच बॉक्स रेडी करना है, तो वो फिर टिफिन। अच्छा बच्चों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा सिलेबस पे बात करते हैं कि जैसे हमारे स्कूल सिस्टम का सिलेबस है, आई डोंट नो कितना अभी वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, बट हम लोग वो जो पढ़ रहे हैं ना पिछले 30-40 साल से वही हो रहा है। बट अगर आप देखें यूरोपियन सिस्टम, MCQs या हम O&A लेवल्स की बात करते हैं, कि वो मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे बेहतर हैं ये, बट वो उस एज पे बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल A लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स के अकाउंट देख रहे होते हैं। ओके, जाते जाते एक छोटी सी अच्छी सी बात बोलना चाहूंगी, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इल्म हासिल करना जरूरी है, मगर इल्म से भी कुछ हासिल करना जरूरी है। वाह 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 वाह। मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, एजुकेशन इज नॉट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ। बहुत बहुत गहरा था। इसी डेप्थ के साथ मैं एक खूबसूरत सी बात करना चाहूंगी कि एक बार जो चखले सजदों की लज्जत, एक बार जो चखले सजदों की लज्जत, फिर दुनिया के शोर गुल में कहाँ दिल लगता है। वाह वाह वाह। दीजिए अपनी होस्ट अनम गौहर को इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले शो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।